आप है ओ लॉर्ड, आपका नाम शालोम, एल शदाई, ओ याहवे लॉर्ड. Yes, Jesus, Lord of Lord and the God of God. Lord, let everything that we do in our life, let every activity of our life glorify your name, praise your name, Jesus. Through us, Lord Jesus, let your name be shine all over our places. Wherever we go, Lord, let the people see your light, your kingdom. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Shalom, Shalom, तेरा नाम है Shalom, 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 तेरा नाम है Shalom. Thank you, Jesus. Shalom, Shalom, तेरा नाम है Shalom. Yes, Lord Jesus, प्रभु आपका चरणों में आते हैं प्रभु, आपका उपस्थिति में इस समय में आते हैं प्रभु. तेरा नाम शालोम है, तू शांति देने वाला परमेश्वर है, धन्यवाद देते हैं. Everybody just start remembering Jesus. यीशु मसीह का हर एक चीज़ जो आपका लाइफ में किया उसको याद करने लगो अभी. Every good thing that Jesus did in your life, start remembering. यीशु मसीह ने आपका जीवन में जो भी अच्छाई किया है उसको याद करने लगो इस समय में. आराधना के साथ जो भी अच्छाई किया प्रभु यीशु ने, every goodness, यीशु मसीह ने जो भी किया उसको याद करने लगो right at this moment. He brought peace in my life. That's why whenever I hear Shalom, I am excited. Because I know प्रभु मेरा जीवन में शांति लेकर आया. मेरा जीवन में शांति नहीं था, वो जेहोवा शालोम, He is my जेहोवा शालोम. Maybe आप लोग कमी गति से कोई जा रहा होगा. He can be your El Shaddai. He can be the one who can provide you. There is mysteries in the name of God. He can, शायद आपको चंगाई चाहिए हो सकता है. He can become Jehovah Rapha for you today. A God who heals. Maybe you are still battling. शायद अभी भी struggle कर रहा है, अभी भी अपना sin के साथ लड़ाई कर रहा है. Bible says He is Jehovah Nishi. He can be your victory today in the name of Jesus. He can be your victory today. He is Jehovah Nishi. He can be the banner of victory for your life. Thank you, Lord Jesus. Shalom. Skatala makoteria sebrana sikataraba zeteriana solamantele kevena. And He can be Yeshua, the name that includes all the names, the most beautiful name, Jesus. Bible says, call upon the name of the Lord and you shall be saved. अगर आपका दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, just say Jesus. बस यीशु पुकारो, यीशु पुकारो, सब लोग यीशु पुकारो. Yes. Oh Yeshua, तेरा नाम है Yeshua. That name, the most beautiful name. जब उसको पुकारता है, वो आता है. Yeshua. Oh Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for this time, Lord Jesus. We surrender everybody who's watching us in online, Zoom, Facebook, YouTube, and people जो यहाँ पे भी है प्रभु, सभी को आपके हाथों पर देते हैं प्रभु. तेरा उपस्थिति बनाए रख प्रभु इस जगह पर, इस सेम प्रकार से जिस प्रकार से तू अभी आ रहा है प्रभु, ये उपस्थिति को बनाए रख प्रभु हम सभी को आपके वचनों से. Lord, I'm planning to share my testimony also today, Lord, so anoint me also to share my testimony. May you be glorified, Jesus. All glory and honor, we give it to you, Jesus. We give it to you, Jesus. In Jesus' most precious name, together we pray. And everybody said, Amen. Somebody say, thank you, Jesus. Somebody say, I love you, Jesus. Amen. Zoom वाला भी आप लोग भी बोलना है, जो भी हम लोग यहाँ से बोल रहा है. कोई यहाँ पे इस प्रकार से बोलो, I am a new creation. Somebody shout, I am a new creation. I didn't hear everybody. Come on, shout, I am a new creation.
और एक बार, आई एम ए न्यू क्रिएशन। से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे जो ऑनलाइन से देख रहे हैं, एवरीबॉडी जो यहाँ पे है। आज हमारा फर्स्ट सर्विस है YBW यूथ ब्रेक थ्रो वॉरियर्स का फर्स्ट सर्विस हम लोग का ऑनलाइन में भी चल रहा है, फेसबुक, यूट्यूब एंड जूम में भी आ रहा है। एंड हम आज यहाँ पे आप लोग के सामने में आया है आपको कुछ बताने के लिए, परमेश्वर का वर्ड आपको शेयर करने आया है। कौन कौन एक्साइटेड है वर्ड ऑफ गॉड के लिए? कौन कौन भूखा है? आमीन, आमीन। अभी आज हम लोग वचन को भी सुनेगा। आई नो देयर इज आत्मा, यहाँ पे पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। कौन कौन विश्वास करते पवित्र आत्मा हमारा बीच में है? इज देयर इन आवर मिड्स। हम प्रभु को वचन को भी शेयर करना चाहता है, बट हम यहाँ आने से पहले प्रभु ने हमको बोला मेरा गवाही को बताओ बोलकर। आमीन। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, जस्ट 30 मिनट्स है। हम जितना हो सके मेरा तरफ से मेरा गवाही को भी शेयर करेगा। उसके बाद गवाही ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग वचन को भी थोड़ा थोड़ा देखेगा। आमीन। वचन से भी टच करके जाएगा। परमेश्वर हम सभी को आज बहुत बातें करने वाला है। आमीन। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेगा। अभी आप लोग जो भी हम लोग को देख रहा है, ऑनलाइन से भी शायद देख रहा होगा, हम यूथ पास्टर है RBM चर्च का। मेरा नाम तुबिन है, तुबिन मदांग, यूथ पास्टर है। एंड शायद आप लोग हमको देख रहा होगा कि यहाँ पे यूथ पास्टर बन के आगे अभी पहली बार यहाँ पे यूथ ब्रेक थ्रो का भी ऑनलाइन में हम लोग प्रचार कर रहा है। आप शायद हमको देख रहा होगा यूथ पास्टर तुबिन मदांग को, लेकिन मेरा भी गवाही एक है। आमीन, हालेलुया। सो वो गवाही को आज हम आपको थोड़ा सा शेयर करेगा। क्या है? शायद आप लोग हमको देखता होगा, हम लोग लाइव में ट्रांसलेशन करता है, प्रचार करता है, गौर हम लोग को सामर्थ्य से इस्तेमाल कर रहा है, एवरीथिंग आप देखता होगा शायद। लेकिन आप लोग को हम लोग के बारे कुछ शायद, मेरा बारे स्पेशली आपको शायद इतना पता नहीं होगा मेरा टेस्टिमनी क्या है। कोई लोग को थोड़ा मोड़ा पता है, कोई लोग को मेरा अच्छा चीज़ पता है। टेस्टिमनी में पावर ऑफ गॉड आया, हम 3 घंटा तक गिर के बैठा हुआ था, वो सबको पता है। बट कोई को कहाँ से जीसस हमको बचाए उसको किसी को पता नहीं है। आमीन। सो आज हम सोचा मेरा गवाही को थोड़ा शेयर करेगा और सबको बताएगा जीसस इज अ गुड गॉड। सबको बताएगा जीसस एक जिंदा परमेश्वर है। आमीन। जीसस हमको बचाया, कहाँ से बचाया, कौन सा जगह से बचाया, उसको आपको शेयर करेगा। ज़्यादा समय नहीं लेगा उस जगह में, लेकिन हम बताएगा। लेकिन जब यहाँ पे आया, ब्रदर लियाम भी गा रहा था आई एम ए न्यू क्रिएशन। हम सोचा गॉड हम शेयर नहीं करेंगे टेस्टिमनी को, सोचा है क्योंकि इतना सब लोग आनंदित होकर मना रहे, हम अभी अपना पुराना जीवन के बारे में थोड़ा बताने से मज़ा नहीं लगेगा। बट गॉड ने बोला कि बताओ बोलकर, हम विश्वास करते परमेश्वर कुछ बातें किसी को करना चाहते, इसीलिए परमेश्वर बोल रहा है। हालेलुया। लेट अस गो इन एफिशियंस चैप्टर नंबर 4 का 17 में पढ़ेगा। एफिशियंस चैप्टर नंबर 4 में जाएगा सभी लोग। एफिशियंस 4:17 से 19 तक पढ़ेगा। हिंदी में भी कोई पढ़ देगा, हमारा भैया है बीच में। एफिशियंस का 4 का 17 से हम लोग पढ़ेगा। एफिशियंस 4 का 17 हम हिंदी में पढ़ देगा भैया। कैन यू पास द माइक्रोफोन? Ephesians 4, कृष्णा इज देयर, कृष्णा को दे दो, नहीं तो कृष्णा को। यस कृष्णा। Ephesians का 4 का 17 हम इंग्लिश में पढ़ देगा। This I say therefore and testify in the Lord that ye henceforth walk not as other Gentiles walk in the vanity of their minds. Verse 18 में पढ़ता है, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Verse 19, who being past feelings have given themselves over unto lasciviousness to work all uncleanness with greediness. Can you read it in Hindi? Ephesians का 4 का 17 से 19 तक। Ephesians chapter 4 verse 17, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। 18, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। 19, और वे सूत्र होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। हालेलुया। यहाँ पे आप वर्स नंबर 18 में इस प्रकार से लिखा है, हैविंग द अंडरस्टैंडिंग डार्केंड। कौन लोग कल पास्टर का फ्राइडे प्रोफेटिकल जूम मीटिंग को अटेंड किया था? हाथ उठाओ।
कौन कौन ने अटेंड किया था, कौन कौन मैसेज को सुना है? ऑलराइट, सो पास्टर ने प्रचार किया इफिशियंस 1, उसमें प्रचार किया हमारा आत्मिक आंख में ज्योति आना, आमेन, उसके बारे में प्रचार किया, राइट? आत्मिक आंखों में ज्योति आना, हमारा आत्मिक समझ में ज्योति आना। आज यहाँ यूथ पास्टर आगे क्या प्रचार कर रहा है सोच रहा होगा, बट आप इस प्रकार से लिखता है, वर्स 18 में कहते हैं हैविंग द अंडरस्टैंडिंग डार्केंड, आमेन। पास्टर प्रचार कर रहा है अंडरस्टैंडिंग का एनलाइटनमेंट हुआ, यहाँ पे ब्रदर तू भी ना के बोल रहा है अंडरस्टैंडिंग का डार्केंड हुआ। क्या बोलना चाह रहा है बोल के सोच रहा होगा। सो हम इसको, ये वर्स को इसीलिए हम रेफरेंस में लिए क्योंकि हम अपना गवाही को बताना चाहता है, इसीलिए हम इससे हम स्टार्ट कर रहा है। ये चीज़ हम गुजर रहा था, इस प्रकार से हम विश्वास करता है। माई अंडरस्टैंडिंग, मेरा सोच समझ अंडरस्टैंडिंग जो डार्केंड हो गया था, एंड आई वॉज एलियनेटेड फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड, प्रभु का जीवन से दूर हो गया था। क्यों? इग्नोरेंस की वजह से। लेट मी शेयर यू व्हाट आई एम टेलिंग। बहुत सारे लोग, लेट मी शेयर, यू नो, आई डोंट नो मे बी हाउ, बट मे गॉड हैव ग्रेस अपॉन आवर लाइव्स। सो बहुत मेरा गवाही बताएगा आपको, ठीक है? सो at a very young age, okay, at a very young age, everybody listen, okay, at a very young age, I believe I was exposed to some bad stuff. कौन कौन यहाँ पे pornography के बारे सुना है? हाथ उठाओ। pornography, this is youth, I believe बहुत सारे लोग struggle करता है। at a very young age I was exposed to that. I won't be mentioning much, but not because of me, but because of some elders जो मेरा सामने में, they were watching those bad stuff, and I was there. हम around 3-4 years का था, but they were watching in front of me, and those images went inside of me, I believe. उसके बाद ऐसा होने के बाद हमको पता नहीं क्या होता है, but those images जब आप लोग का दिल में जाता है, if you see psychology also, जब वो सब images जाता है कि इंसान का दिमाग पर, it starts to affect the mind in a different way. Alright, so इस प्रकार से I was exposed to those bad stuff at a very young age. I didn't know उसका effect क्या होने वाला है, but as I started to grow up, उसका effects हमको दिखाई देने लगा. I believe now, by being in Christ, I can say there was a spirit of lust, amen, spirit of pornography, spirit of lust at a very young age निकल के started to attack me, and उसके कारण I got involved in उसके कारण क्या हुआ, at a very young age, I believe, हम जल्दी जाएगा, I believe this will help some people. So हम जब 16-15 years का था, उसमें I started having relationship, understand? I started having relationship because maybe I was exposed to all those bad stuff. So because of all these things, our minds were corrupted. Amen. I believe हम जो बोल रहे हैं ये सब बहुत common है सब लोग का, इसलिए बहुत जवान का समय में आप लोग relationship रख लेता है, because वो सब का ये कोई लोग का इस एरिया में, तो कोई लोग का अलग चीज़ है, उन लोग का culture को देख के ऐसा हो जाता है. Amen. So मेरा भी I believe इस प्रकार से हुआ, and because of that I got involved in relationship, and all the bad stuff started happening. And उस मोमेंट में, you know, इतना छोटा एज में जब आप ये सब चीज़ एक्सपोज होता है, okay, then your mind cannot handle those stuff, because those are things जो mature people भी इससे struggle करता है. But at a young age, like 3 and 4 years of old, उस समय में you are innocent, your innocence is stolen during those times. समझ रहे हैं? ऐसा प्रकार से हुआ लाइफ में. But हम सोचे इतना कुछ नहीं, but I was struggling with that. लेकिन मेरा पढ़ाई सारे, it was very good. I was a good student, but हमको मेरा अंदर में side that was there, spirit of lust. I didn't knew that. So again, because of that spirit of lust operating in me, listen everybody, वो spirit of lust मेरे अंदर क्या कर रहा था? Operate कर रहा था. Operate मतलब काम कर रहा था बोलो. काम क्या कर रहा था? काम कर रहा था. ऐसा होता है बहुत सारा, आप लोग का लाइफ में भी होगा, आप लोग को पता नहीं है कि कुछ आत्मा आपका लाइफ में काम कर रहा होता है, आपको पता नहीं होता है, until somebody comes. And who's that? Jesus. We are coming there. Amen. So I want to close this area very soon. So उसके बाद I entered into all those relationship. ज़्यादा नहीं, एक ही था, ठीक है, कोई 3-4 तो होता है, ऐसा नहीं था, मेरा एक ही था. So उसके बाद again, because of all those stuff, I think because of all those things in my mind, I think उसके वजह से I got involved in a bad, you know, many bad stuff, sexual immorality, fornications, and all those stuff. Struggled. Okay, think at an age of 16. You understand? Now I'm 21. So उस moment में ऐसा हुआ, I was like completely, आपका soul क्या हालत में होगा पता कर सकता है. And we are very blessed. हम लोग अभी हम लोग को God touch कर लिया है. We are very blessed. But बहुत सारा young people, they are struggling like that. You understand? बहुत सारे young people, they are in relationships. क्यों है बोलने से? They don't understand why, but the spirit of lust is working. Attraction होता है. They don't see the character of the boy.
ओके उन लोग कह रहे लड़का का सुंदर है, लड़का हैंडसम है, तब हाँ बोल देगा, लड़की सुंदर है पता लेगा, दे डोंट स्पेंड टाइम विद देम ऑल्सो। उसके वजह से बहुत सारा लड़का लोग लड़की लोग का लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसे ना हम राइट है कि नहीं, राइट? बहुत सारा लड़का लोग ऐसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो आई वांट टू से इवन फॉर सम बॉयज, इफ यू आर वाचिंग, do not destroy girls life like that, all right? Do not destroy girls life like that, ऐसा करके इस चीज़ में फंस के। एंड इवन गर्ल्स भी आप लोग को हमेशा सतर्क रहना है। यू शुड बी डिसर्निंग व्हाट काइंड ऑफ बॉय ऐसा हो रहा है, बिकॉज क्रिश्चियनिटी में व्हेन वी स्टार्ट टू डेट समबडी, वी आर डेटिंग दैट पर्सन सो एज टू मैरी दैट पर्सन। ओके, गॉड हैज कॉल्ड अस इनटू प्यूरिटी। समबडी से प्यूरिटी। परमेश्वर ने प्यूरिटी में बुलाया है, बट द डेविल ट्राइज टू स्टील योर प्यूरिटी। Amen. Devil tries to steal your purity because आपका purity में सामर्थ है। Amen. In your purity, सामर्थ। God says Jesus Christ was declared to be the Son of God because of the spirit of holiness and the spirit of resurrection. Amen. पवित्रपन में सामर्थ है। Amen. अभी का ये generation में the devil is trying to steal the purity from the youths, but God gave us the Holy Spirit. Somebody say Holy Spirit. You know the name itself says Holy Spirit. Amen. और उसका नाम में पवित्र आत्मा, पवित्र बनाने के लिए आता है पवित्र आत्मा। Amen. ये जनरेशन में हम लोग को पवित्र बन के खड़ा होना है। Amen. When the devil, you know, जब जीसस हमको सेव कर लेना, what did I say to devil? You know, हम बोला Satan, तुम हमको गंदगी में ले गया, you led me to all this immorality. I'm gonna stand for purity. Hallelujah. I said to the devil face to face, I said, my ministry, I will stand for purity. My ministry will be known for purity. I will preach purity. I will preach holiness. I said to the devil face to face, because I know he tried to destroy my life. He tried to destroy in this way. Amen. उसके बाद 16 years में चला गया, उसमें ऐसा करने के बाद then when हम ऐसा स्टेज में आ गया जब हम थोड़ा समझ आने लगा। but you know जो relationships होता है, हम when I'm saying 16, why I'm mentioning the age is because ऐसा मोमेंट में हम लोग का बहुत सारा इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप नहीं होता है। ठीक है, जो होगा, आप लोग भी बहुत छोटा है अभी तो हम लोग जैसे अभी हम थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया उस मोमेंट में, वी कैन नॉट कंट्रोल आवर इमोशंस ऑल्सो एनीथिंग। सो ऐसा हो कि आई वाज स्ट्रगलिंग टू अ लॉट ऑफ इमोशनल टर्मोइल्स हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। आई थॉट आई लव दैट अनदर गर्ल, जो भी लड़की था, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक आई डोंट सी दैट एज लव, आई सी दैट एज लस्ट। ओके, I am telling you, because love में हमको समझ आया कि love में freedom है। Amen. Amen. Love में freedom है, but during those moments क्या होता था? कॉल नहीं कर रहा है, चिंताओं के वजह से। That is not love. Amen. Love में क्या है? Somebody say freedom. Love में freedom है। Bible says where there is love casts out all fears. सब डर को भगा देता है। Love में आजादी है। Amen. Bible says Holy Spirit is the spirit of love, and where the Holy Spirit is, there is liberty, there is freedom. Amen. हमको ये चीज अभी समझ आता है। So when I look back, that's why I say that I think that was not love, that was lust, right? And I'm saying this, maybe आप लोग भी शायद कोई रिलेशनशिप में होगा, अभी आपको लग रहा है लव है लव है लव है, बाद में शायद जब आप मैच्योरिटी होने लग जाएगा, आत्मिक चीज़ों को समझ आने लगा, आपको पता चलेगा वो लस्ट था। Amen. So that's why हम शेयर कर रहे हैं। उसके बाद I started to struggle, and my parents, my mom was a praying woman. My papa तो इतना अच्छा नहीं, but I believe my mom were, you know, fasting लेगा, fellowship बुलाता है, they were praying for me. And apart from that, what I believe is that I was मेरा घर सामने में है, usually दिख सकते चर्च को देखा, मेरा grandmother का घर सामने में है, but still I live here in church. You understand? The only reason is because Lord said to me to stay here, and because I love Jesus. All right. I believe my mom was praying. Another thing I believe is that this church was praying for some youths to come. एंड आई नो उन लोग हमको शेयर किया, सब लोग ने शेयर किया। नानी दी लोग भी बोलता था यहाँ पे बस 5 बिलीवर ही था, पास्टर था, नानी दी था, सुम आते था, जो 5-6 तो बिलीवर था उन लोग। लेकिन हमको बताया जब आई वॉज द फर्स्ट यूथ, मेरा निक्सन बोल के एक लड़का था, उसके बाद आई केम, बट निक्सन इज नॉट हियर एनीमोर, सो बाय डिफॉल्ट आई बिकम द फर्स्ट यूथ। Right, so I am the all right, so I was there and they always shared me. उन लोग बोलता था कि जब उन लोग था they prayed for youths to come. उन लोग अन्य भाषा में, नानी दी को you saw today, हम लोग का मीटिंग हो रहा है, जो ऑनलाइन से देख रहा है, we are having some fellowship here. नानी दी भी बता कितना प्रार्थना करता था सुबह से लेकर शाम, ऐसा they believe, they prayed, they cried, youths को भेजो, they say to me, youths को भेजो। I believe the answer of that prayer was me.
I'm not glorifying it. हम कुछ अपने आप को कुछ बोझ नहीं कर रहे. But what I'm showing you is that, you know, God, somebody prayed and God brought a man like me who was so much in sin. Hallelujah. The reason God told me, I said, I want to share the testimony. Everybody is rejoicing. सब लोग, I am a new creation. हम पुराना creation का बारे क्यों बोलेगा? God said, share your testimony. I want to glorify myself. Because, listen, because Jesus said, if you will share your testimony, many people look at me now as an inspiration and they say like Tubin Bhai is doing all these things. But if I share you my testimony, हम कौन सा level में था ना? कहाँ से परमेश्वर उठाया ना? When you will know this, you will know that God can use anybody. If God can use a person like me, if God can use a person like Tubin, God can use anybody. जो भी यहाँ पे, God आप सभी को इस्तेमाल कर सकता है. I know I was so much in sin. I said, I cannot even mention those stuff. इतना चीज में फंस के बैठा, I was struggling, but I used to cry. I would do the sin. I was crying, Lord, help me, Lord Jesus, help me. I want to say, like, I believe Jesus को तो हम believe करता था, but I didn't know anything about Jesus. I just said, God, कोई तो है तो मदद करो. I ऐसा करके प्रार्थना करता था. And when I was in 16, some brothers, then I started. Then उसके बाद एक साल के बाद से बोला हम यहाँ पे आया, and then I started to know about Jesus, and Jesus saved my soul. Amen. And now I'm so glad that I belong to Jesus. Amen. I'm so happy that Jesus came and saved my soul. He came, I was drowning in sin. वहाँ से हमको पकड़ के, when I thought there was no hope, कोई हमको उठा नहीं सकेगा, उस moment में Jesus' hand came and touched my hand and pulled me out. Hallelujah. कोई इंसान बचाया नहीं, यीशु मसीह बचाया. इसीलिए I love Jesus so much. Because I know how I was. हमको पता है मेरा अंदर हम कैसा इंसान था, कैसा spirit of lust was there. Bible says Galatians 3:13, Jesus delivered me, redeemed me from all curses. Amen. Do you want to read that verse? Galatians 3 में जाएगा. Galatians 3:13. I don't have much time. They say 9:30 तक खत्म कर दो. Just 10 minutes are there with me. Galatians 3:13 में जाएगा. I don't have much time. Just testimony बताते, we'll try. Galatians 3:13 को पढ़ेगा. इसमें इस प्रकार से लिखता है. अभी आपको समझ, हम अपना गवाही को हम बता दिया. गवाही को आपको बताया, हम बताया कि I was those all spirit of lust was drug and all those things. Spirit of lust क्या कर रहा था मेरे अंदर? Operate कर रहा था. लेकिन हम अभी जितना अभी हम आत्मिक में समझ आता है, हमको दिखाई देने से हमको पता चलता है. Now when I look back, I can understand that was a curse. Amen. वो कर्स के वजह से डेविल जो हम लोग को अपने अंदर में दबाने के लिए कोशिश करता है, ठीक है? क्या के वजह से? कर्स के वजह से, ठीक है? बाइबल से Galatians 3:13 में इस प्रकार से बोलता है, Christ redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. Amen. हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह मेरा लिए क्रूस में मरा, मेरा जो भी श्राप था उसने लिया और हमको आजाद कर दिया. Hallelujah. Now when I stand here in front of you, I can boldly say Jesus delivered me from that spirit of lust. Jesus delivered me from that spirit of pornography. I'm free, you know, I don't even think about all this stuff nowadays. पहले it was इतना भयंकर से दिमाग में stronghold बन गया, but now by God's grace, Bible says, and I know that was a curse. समझ रहा है? It is by grace we are saved. यीशु का अनुग्रह के वजह से. Amen. So Bible लिखता है, Jesus died for me and he became a curse for me and he delivered me from the curse. Amen. वो कर्स, वो जो स्पिरिट ऑफ लस्ट जो मेरे अंदर कार्य कर रहा था, और शायद कोई का अंदर में अलग अलग स्पिरिट कार्य कर रहा है, किसी का एंगर होगा, किसी का क्या होगा, किसी का टेंशन का, वरी का होगा. But Bible says Christ redeemed us from all curses. Amen. Christ set us free. हम लोग को आजाद कर दिया, and He made us free. He made us what? The Bible says 2 Corinthians 5:17. He made us a what? A new creation. Somebody say, I am a new creation. Because Jesus died for me. यीशु मसीह हम और आपके लिए मरा है. इसके वजह से हम और आप अभी एक नया प्राणी बन गया है. आमेन. ये हम लोग मर रहा था, दलदल में था, पूरा पापों में था. वहाँ से यीशु मसीह ने हमें पाप को हटा के क्रूस में मर के हमारा पाप से छुटकारा दे के परमेश्वर ने हमें खींच के बाहर निकल के हमें एक नया प्राणी बना दिया है. Hallelujah. And now do you know, let us go into the word of God now. Little bit I'll share, 5 minutes and maybe we'll be closing. अभी हम लोग Romans 8 का 2 में जाएगा. Everybody turn to Romans 8:2. रोमन्स का 8 का 2. हमको कोई हिंदी में पढ़ देने से बहुत अच्छा लगेगा. रोमन्स का 8 का 2. Jesus, how good you are. रोमियो का 8 का 2. Yes. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने
मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्रता कर दिया। Hallelujah. Bible says, for the law of the spirit of life in Christ Jesus. Somebody says, spirit of life. Spirit of life. Bolo. What did I say first? A spirit of lust मेरा ऊपर में operate कर रहा था. But now I can boldly say the spirit of life is operating inside of me. Amen. आज सब लोग confess करो. Spirit of life is operating in me. Spirit of life मेरे अंदर में है. जीवन का आत्मा मेरे अंदर में है. वो जीवन का आत्मा हर मरण हर पाप को दूर कर दिया. हालेलुया. आनंदित मनाएगा. आमेन. हालेलुया. आज हम लोग को समझना है, आज हम लोग विक्ट्री का दिन है. यीशु मसीह हम लोग को आजाद किया है, उसका विक्ट्री मनाएगा. आमेन. यहाँ पे बाइबल, फॉर द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीसस हैज मेड मी फ्री from the spirit, from the law of sin and death. Amen. अभी मेरा जीवन में जैसे हम बताया, पहले the spirit of lust was operating, but now Bible says a different spirit works in us. That is the spirit of life. Amen. आपको पता है, बाय साइंस में इस प्रकार से होता है, एंट्रोपी बोलता है. बाइबल बोलता है, साइंस बोलता है, एवरीथिंग जो भी दुनिया में है ना, धीरे धीरे डिकम्पोज होके धीरे धीरे डिसऑर्डर हो रहा है. ठीक है, उसको हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं. द बाइबल से साइंस में इस प्रकार से बोलता है, एंट्रोपी इस बोलता है कि जो भी दुनिया में जन्म हुआ है धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है. हाँ, धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है. जो भी दुनिया में आता है, एक स्पिरिट ऑफ डेथ उनके अंदर में काम करता है, धीरे धीरे खत्म होते जाता है. But the born again believers like you and me, the Bible says the spirit of life works inside of us. Hallelujah. कौन कौन आज विश्वास कर रहा है? Amen. शायद आपका चीज मरा भी होगा, शायद आप सिकनेस से भी गुजरा होगा, but the Bible says the spirit of life आपके अंदर में कार्य कर रहा है. वो धीरे धीरे करके ठीक करता है. Amen. हम लोग भी बहुत बीमार लोग से था, बहुत सारे इंसान लोग को आपके गवाही सुनाई देगा, बीमार लोग से था, बीमार था, लेकिन धीरे धीरे जब होली स्पिरिट, दिस स्पिरिट ऑफ लाइफ होली स्पिरिट है. ठीक है, होली स्पिरिट जब काम करने लगता है ना, एक डिफरेंट लो हम लोग का लाइफ में काम करने लगता है. आई डोंट नो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग. आमेन. समबडी से आमेन. देखो, एक लो ऑफ ग्रेविटी है. देखिए, ये मेरा फोन है ना, इज इट वर्किंग? इज इट वर्किंग? नो. टाइम इज गोइंग ऑन. ही इज लाइक कर रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, हमको बोल रही है. ऐसा नहीं क्या? सो ओ देखो, ये देखो, ये अभी फोन है ना, अभी हम इसको छोड़ने से क्या होगा? इसको हम छोड़ने मन नहीं है. तो क्या होगा? ये देखिए है ना, ये अभी हम इसको छोड़ने से क्या होगा? इट विल फॉल डाउन. राइट. ये क्यों ऐसा हो रहा है? देयर इज अ लॉ ऑफ ग्रेविटी. हालेलुया. सो लॉ ऑफ ग्रेविटी दुनिया में काम कर रहा है. एंड ऐसा एंट्रोपी बोलता है, लॉ ऑफ डेथ, धीरे धीरे लॉ ऑफ डिसऑर्डरनेस दुनिया का इंसानों में काम कर रहा है. बट बाइबल सेज, जिसने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, दे रिसीव अ स्पिरिट ऑफ लाइफ. एंड इफ यू रीड प्रॉपर्ली, बाइबल सेज, अच्छे से पढ़ो, रोमन्स का 8:2 में क्या लिखा है? बस ऐसा नहीं लिखा यू हैव रिसीव्ड द स्पिरिट ऑफ लाइफ. बाइबल सेज द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीसस हैड मेड मी फ्री. एक लॉ, नया प्रकार का नियम, एक नया नियम आपके अंदर में कार्य कर रहा है. पहले का नियम क्या था? एंट्रोपी का नियम, हम धीरे धीरे बुरा हो जाएगा, मर जाएगा. अभी का डिफरेंट है. पहले पास्टर का देखो एग्जांपल, बुरा होते होते बाल गिरते जाएगा, टकला हो जाएगा. अभी लेकिन द मोमेंट होली स्पिरिट केम, क्या हो गया? धीरे धीरे बाल आगे आ रहा है. अभी देखो हम लोग के पास इतना हैंडसम हो गया. Why? Because a new law is working in their lives. Amen. एक नया प्रकार का लॉ काम कर रहा है, जिसके वजह से ये कार्य हो रहा है. Amen. हम और आपका जीवन में भी एक न्यू लॉ, a law of the spirit of life is working in us. Amen. कहाँ पे? बाइबल से in Christ Jesus. जो यीशु मसीह में है, हम लोग को विश्वास करना, एक नया लॉ काम कर रहा है. Because of this law, listen, because of this law we sing this song. I am flying. I'm flying. अब ऐसे ही गाना करो, I'm flying. सब लोग फ्लाई कर रहे हैं, अभी फ्लाई होगा. No, why we are singing is because I'm flying, because we know that there's a different law working in us. Amen. Because we know, understand? We know that there is something, some powerful thing is working inside of us. ये चीज हम लोग को नीचे नहीं ले जाता है, ये चीज हम लोग को धीरे धीरे उठाता है. Hallelujah. This thing that is inside of us, हम लोग का पाप को भी खत्म करता है. Bible says पाप को सिर्फ नहीं, come on somebody, मरण को भी खत्म करता है, कहता है. Hallelujah. This law of the spirit of life has made me free. आजाद करते from the law of sin and death. Hallelujah. पाप मेरे ऊपर में काबू नहीं करता है. Somebody say like this, पाप
मेरे ऊपर में कोई काबू नहीं है। मरण मेरे ऊपर में कोई काबू नहीं है, बिकॉज पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है। Amen. The spirit of life हम और आपके अंदर में, and the moment spirit of life आता है, a new law starts to operate. Amen. ग्रेविटी का लॉ बोलता है जो भी चीज छोड़ेगा नीचे जाएगा, गिरेगा। The spirit of life says जब ये आता है हम लोग को ग्लोरी से ग्लोरी ले जाता है। हमें ये जब होली स्पिरिट हम लोग के अंदर में आता है, एक नया लो स्टार्ट होने लग जाता है, हम लोग को यीशु के करीब और ले जाता है, उसका कैरेक्टर में हम लोग को ट्रांसफॉर्म करने लग जाता है। हालेलुया। क्या आपको समझ आ रहा है? जब ये आता है ना, जिसने बोला था, we start to sing like I'm flying on Holy Ghost wings. Not on eagle's wings, but कहाँ पे? Holy Spirit का wings में। Amen. पवित्र आत्मा का पंखों में हम लोग लगा के हम लोग उड़ने लगता है, because we know that this Holy Spirit has now started to dwell inside of us, and ये पवित्र आत्मा मेरे अंदर में एक नया लो को काम कर रहा है। Somebody say new law. आपको समझ आ रहा है? हम लोग सांस लेता है, ये भी हम लोग एक लो के समान, हम लोग कुछ कर रहा है। आत्मिक में भी लोज है। Amen. आत्मिक में भी लोज है। And Bible says this law of the spirit of life in Christ, जब ये आता है ना, कोई मरण नहीं आएगा, कोई बीमार हम लोग को नहीं छू सकता है, कोई लस्ट हम लोग का पीछे नहीं आ सकता है। When I started to understand these things ना, हमको पूरा मेरा जो भी चीज़ हमको छुटकारा मिल गया। समझ रहा है? प्रभु ने हमको वचन के द्वारा ही छुटकारा दिया है। हम पहले नया बचा, उसके बाद हम सोचे आओ बपतिज्म ले लिया, अभी हम नया बन गया, वो क्या हम किया? Still I fell on sin. I still fell on all like cycle में फंस गया, फिर I was sinning. But the moment I started to read the word of God and understand the word of God, वचन को समझने लगा, खुद से प्रार्थना करने लगा ज़्यादा। Amen. आपको खुद से प्रार्थना करना पड़ेगा, समय निकाल के समय देना पड़ेगा। Hallelujah. हम दिखाएगा, प्रार्थना का भी हम दिखाएगा। हम प्रार्थना जब बोल रहे हैं, हम प्रार्थना में क्या करो बोल रहे हैं, उसको भी बताएगा। प्रार्थना भी खुद से करना पड़ेगा, वचन को भी पढ़ना, क्योंकि बाइबल का वचन जब आपको बातें करने लगता है, वो आपको धीरे धीरे, जैसे पास्टर बताया, साफ करने लगता है, शुद्ध करने लगता है। Amen. Zoom वाला समझ रहा है? Come on, wave your hands if you're understanding. Zoom bala. All right. So this word of God will start to cleanse you and make you. And ये जो हम लोग का अंदर में पवित्र आत्मा काम करता है, this is a new law of the spirit of life in Christ Jesus, जो हम लोग को आजाद कर देता है law of sin and death से. Amen. All right. So now let me tell you what exactly पवित्र आत्मा आप लोग को क्या बता बोले, उसको भी हम बताएगा, ठीक है? And this is the last verse, and then we'll close. Amen. Are you enjoying? Are you enjoying? All right. So I shared you my testimony. उसके बाद हम आपको spirit of life के बारे में बताया, the law of the spirit of life, जो हमारे अंदर कार्य कर रहा है, ठीक है? Law of the spirit of life. Next, I want to just mention you one verse, ताकि आप लोग इसको लिख के रखेगा। Ephesians 3:8 में जाओ। Ephesians 3:8. The reason why I shared my testimony is written there. Ephesians का 3:8 में जाओ। इसके बाद हम लोग ये, दिस इज नॉट द लास्ट वर्स, इसके बाद और एक वर्स शेयर करेगा, वो लास्ट वर्स होगा, एंड देन वी विल बाइंड अप। उसके बाद प्रार्थना करेगा एंड बिलीव। कौन कौन बिलीव कर रहा है आज पवित्र आत्मा हमारा बीच में है? कौन कौन विश्वास करता है आज गॉड इज गोना अनॉइंट सम पीपल? कौन कौन विश्वास कर रहा है अभिषेक मेरे ऊपर में आएगा? Literally I'm telling you, if you believe God is gonna anoint some people today and God is gonna touch with Holy Spirit's anointing, आपका कोई लोग आज लास्ट दिन भी हो सकता है, शायद कोई लोग जाएगा वापस। मे बी देखो, हम कल निकल हम मंडे में निकल रहा है, हम शायद आपको देखने नहीं मिलेगा। सो टुडे दिस विल बी द लास्ट सर्विस फॉर मी। I'll try, we'll pray together and we'll see what Holy Spirit does. Okay, हम लोग विश्वास करेगा पवित्र आत्मा कुछ करेगा बोलकर। Ephesians 3 का 18 को what did I say? Ephesians 3:8. Can you read, brother? Ephesians 3 का 8. इफिसियो 3 का 18. Yes. 8. मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के आगमन धन का सुसमाचार सुनाओ। Amen. देखो इसमें प्रकाश बोला, unto me who am the least than all the saints. ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? इसको कौन लिखा है? समरी से कौन लिखा है? कौन लिखा है? Ephesians को कौन लिखा है? Paul is saying unto me the least of all saints. ये हम लोग इसको पॉल को मेगा अपोस्टल्स बोलता है, सबसे ज़्यादा लिखा है, सबसे ज़्यादा वो बाइबल का न्यू टेस्टामेंट को ज़्यादातर तो वही लिखा है। ये खुद बोल रहा है कि आई एम द लीस्ट ऑफ ऑल सेंट्स। समझ रहा है?
एक जगह में वो इस प्रकार से बोलता है, आई एम द लीस्ट ऑफ ऑल अपोस्टल्स। जितना भी अपोस्टल्स है सबसे नीचे में हम है बोलता है। लेकिन जितना वो प्रभु का महिमा को देखते गया, नाउ ही सेइंग आई एम द लीस्ट ऑफ ऑल सेंट्स। हालेलुया। हम्बलनेस आने लगता है हमारा जीवन में। ये चीज़ को हम क्यों बता रहे पता है? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है, आई बिलीव माई सेल्फ ऑल्सो कि अगर परमेश्वर हमको इस्तेमाल कर सकता है ना, गॉड कैन यूज एवरी वन ऑफ यू। अगर हम, आपको मेरा टेस्टिमनी भी शेयर किया, हम ऐसा गंदगी में था, हम पूरा बता भी नहीं सकते, ऐसा अलग कुछ है। इतना अगर मैं होके भी अगर परमेश्वर वहाँ से खड़ा करके आज अब हमको देख रहा है, यहाँ पे खड़ा होते हुए हम आपका सामने प्रचार कर, आप देख रहे हैं, राइट? हम अगर ऐसा कर रहा है तो गॉड कैन डू इट इन योर लाइफ ऑल्सो। डू यू नो देयर इज अ वर्स कॉल्ड लाइक दिस? डू यू नो देयर इज अ वर्स कॉल्ड लाइक दिस? गैलेशियंस का 1 में इस प्रकार से लिखते हैं, गैलेशियंस 1 में जाएगा, गैलेशियंस का 1 का 24 में जाएगा। बाइबल ऐसा लिखता है, एंड दे ग्लोरीफाइड गॉड इन मी। ये देखो ये क्या है? अपोस्टल पॉल कह रहा है। पौलुस कौन था पता है? अपोस्टल पॉल। अपोस्टल पॉल एक मर्डरर था, क्रिश्चियंस को मारने वाला था, बहुत सारे क्रिश्चियंस को हत्या कर दिया, स्टीफन को मारा। स्टीफन के बारे में जानता है? स्टीफन वाज द फर्स्ट मार्टियर। पॉल ये अपोस्टल ये इतना सारा क्रिश्चियन को मारा, क्रिश्चियन लड़का लड़की सबको मारने लगा। ये गॉड इसको कहाँ से बचा के, यू नो, हम लोग, आई एम टेलिंग यू समथिंग, आई वाज विद पास्टर, हम पास्टर के साथ था, हम लोग बंदर दुआ गया था कुछ खरीदने के लिए, ठीक है? पास्टर हमको ऐसा बोला, तुबिन हम जब नया नया मसीह में आया था ना, हम जब यीशु को जानता भी नहीं था, उस समय में पहले पास्टर जीसस को जानता ही नहीं था, लेकिन जब वो जीसस को जान गया, जब वो अपना जगह को छोड़ के आया, एक वहाँ पे एक इंसान मिला था बोलता है, वो जो पास्टर के पास रहने का भी जगह नहीं था, तो वहाँ पे एक इंसान आया बोलते, और वो बोला, वो इंसान जो पास्टर को आके एक चाबी थमा दिया, ये घर में आप बैठ जाओ के। पास्टर के पास एक घर भी नहीं था बैठने के लिए, लेकिन वो इंसान जो आके उसको दे दिया, चाबी दे के चला गया, बैठ जाओ बोल के। और वो इंसान जो उसको बोला कि हम प्रार्थना करते समय बहुत पहले से गॉड हमको बोला कि एक इंसान आएगा, उसको तुमको ये घर को दे देना है। एंड पास्टर जो शौक हो गया कि वो नया नया बोर्न अगेन हुआ है, ठीक है, नया नया बोर्न अगेन हुआ है, वो आया, उसके पास घर बैठने का जगह नहीं। पास्टर अपना सीने पास्टर को जाके, हम यहाँ पे बैठने आया अपना, क्योंकि यू नो पास्टर का टेस्टिमनी, पास्टर भी अपना टेस्टिमनी को शेयर करता है। वी शेयर आवर टेस्टिमनी बिकॉज वी वांट टू शो दैट गॉड इज गुड एंड गॉड कैन, अगर हम लोग को इस्तेमाल कर सकते हैं, गॉड आप लोग को भी सबको इस्तेमाल कर सकता है। आमीन। सो पास्टर भी अपना टेस्टिमनी बताया, वो उसका मम्मी का कुछ हुआ था, वो भाग के आ गया अपना विलेज को, राइट, विलेज को भाग के आ गया, उसके पास घर भी रहने का नहीं था। जब गया, नॉन बिलीवर से बिलीवर बना, कुछ दिन के बाद एक आदमी आके बोलता है, ये घर को हमको तुमको दो बोल के बोला है। जब पास्टर को ऐसा बोला, पास्टर स्टार्टेड क्राइंग एंड वो रो के, तब इससे पास्टर को एक चीज़ बोला, एंड आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रिलेट विद दिस। पास्टर बोला कि तुम्हें पता है हम क्यों यीशु को इतना प्यार करता है? क्योंकि जब हम यीशु को जानता भी नहीं था ना, उस समय से जीसस मेरे लिए एक इतना बड़ा से प्रिपेयर करके रखा हुआ था। आमीन। एंड आई ऑल्सो से द सेम थिंग। अभी हम भी समझ आता है, पोल भी हम लोग सोचते बहुत बड़ा है, पोल बहुत बड़ा है, मेगा अपोस्टल, बट यहाँ पे देखो, ही सेइंग आई एम द लीस्ट ऑफ ऑल सेंट्स। हम इतना कुछ भी नहीं था, हम दूसरा को मारता था, क्रिश्चियंस को धमका के मार के रखा, ऐसा वालों को अगर परमेश्वर इस्तेमाल किया, इसीलिए पोल का प्यार इतना ज़्यादा था यीशु के लिए। हम लोग बोलते ना, पोल क्यों इतना प्यार करता था यीशु मसीह को? क्योंकि पोल को इतना गहरा से परमेश्वर ने माफ़ किया, वो इतना पाप किया था, इतना क्रिश्चियन लोगों को मारे, जितना, लिसन, बाइबल सेज लाइक दिस, हु इज फॉरगिवन मच लव्स मच। Clap for Jesus if you understand. Bible says those who are forgiven much loves much. जिसको ज़्यादा माफ़ी मिलता है ना, वो ज़्यादा प्रेम करता है, जिसको कम माफ़ी मिलता है कम प्रेम करता है। पोल को बहुत बड़ा माफ़ी मिले, इसलिए पोल समझ गया कि आई कैन नॉट लिव फॉर एनी अदर थिंग, हमको बस जीसस के लिए जीना है, क्योंकि इसने मुझे हमको बचाया, हमको माफ़ किया है बोलकर। एंड पास्टर भी बोला, एंड आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी नाउ दिस हम बताते जा रहे हैं चीज़ को, आई बीन शेयरिंग एवरी टाइम आई गेट एन अपॉर्चुनिटी। गॉड इज pouring his first love inside of my heart, I believe. वो नया, वो पहले का प्यार जैसे हम नया यीशु को मिलता है, वो चीज़ को हमको वापस दिखा रहा है, and it is so amazing. So उस समय में when I look back now, so I have that, अभी by God's grace I'm feeling that same love inside of me. उस समय में भी जब जीसस हमको छुटकारा दिया ना, I was, ऐसा बताया, हम पूरा पाप करके था, पूरा इमोशनली हर्ट होके था, पूरा क्या करेगा, जीसस को क्राई आउट किया, उस समय जीसस came and gave me peace. उसके बाद जीसस स्टार्टेड, यू नो, उसके बाद हम जीसस के बारे में और जानने लगे, देन आई स्टार्टेड टू सी जीसस लव। उसके बाद हम रुका ही नहीं, आमीन। हमको बहुत बोला आदमी लोग, क्या क्या बोला चर्च में, आई डिडंट स्टॉप द मोमेंट आई गॉट बोर्न अगेन। थोड़ा कुछ महीना के बाद आई स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग फॉर पास्टर, आमीन। कोई को पूछता है कि कब मिनिस्ट्री स्टार्ट किया, द मोमेंट आई वाज बोर्न अगेन आई स्टार्टेड मिनिस्टरिंग आल्सो, आमीन। ये क्यों किया बोलने से, बिकॉज होली, यू नो,
one thing was that nobody was there, I had to do. Another thing was there was something, passion था, love था जीसस के लिए. Oh Jesus, तुमने मुझे इतना गहरा से बचाया ना, हम इतना पाप में डूबा तो तूने मुझे बचाया. I will do anything for you. And I believe जितना भी ये अपोस्टल पॉल भी ऐसा से जल रहा था. He was burning for love for Jesus. उसको पता था कि जीसस ने उसका लाइफ में क्या किया. And he was like, हम जीसस मेरा लाइफ में तुमने इतना बड़ा किया ना, हम दूसरा के लिए कैसा जिएगा. Amen. तू इतना कुछ कर दिया मेरा लाइफ में, हम कैसा जिएगा. ऐसा वाला बर्निंग का साथ हम जी रहा था. And you know, टेस्टिमनी को आगे थोड़ा बताना, बीच में फिर I was like lacking, but now once again God is bringing those love, and I was like wow, this is the passion जिसका वजह से हम लोग जी रहा है. जीसस इतना बड़ा क्या है. पूरे यहाँ पे Galatians 1:24 में बोलता है, God, you know, God was glorified in me. They glorified God in me. Do you know there is a level that God can be glorified in you and me? Hallelujah. क्या आपको समझ आ रहा है? एक moment में the devil was working in my life. Hallelujah. But now God is working in my life. Amen. God is being glorified through my life. बहुत सारे इंसान लोग अभी आके हमको बोलता है कि ब्रतुबिन इस प्रकार से आप प्रार्थना करते तो ये हुआ. When I do so, when I preach or minister, उन लोगों को Holy Spirit receive होता है. Everything. Now we can see, I can see in my life, through my life, God is being glorified. Jesus has been glorified. Amen. So there is a level God can bring. आपको भी ऐसा level में आ सकते हैं. बहुत सारे लोग आप लोग चल रहा है, but God can bring you to that level. Amen. But आपको ये भी समझना है कि जो हम बता रहा है, Paul loved Jesus like anything. जितना आप यीशु को प्रेम करेगा ना, उतना आप और उसके लिए और ज़्यादा करने के लिए करेगा. And धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कब परमेश्वर आपका द्वारा महिमा हो रहा होगा. Amen. आप बस मगन होगा, आप बस यीशु को बस आराधना करना, यीशु का पीछे चलना, ऐसा होगा. पता भी नहीं होगा, इंसानों को आपको देख के पता चलेगा इसमें कुछ है. Amen. Time is going on. I'll just come to the last verse and we'll pray together. ठीक है? Zoom वाला समझ आ रहा है? Zoom one. Yes. And Facebook, YouTube में जो भी देख रहा है, God bless you guys. Every Saturday we'll be doing, right, brother? Okay. Every Saturday हम लोग करने वाला है. आप सबको join करना है. Every Saturday youth breakthrough का live services होगा Facebook and YouTube में. Our youths are gonna come and they're gonna preach. And I believe ये youth meetings लोग बहुत, जैसे आज हम इतना रो से बताया ना, कौन ऐसा pornography ये सब के बारे में share करता है? But this generation is struggling with that. Somebody needs to stand up, right? किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा. And if this testimony can be used for God's glory, oh hallelujah, I'll be the most pleased one. We don't need any glory. We just need people to say, people to understand that, people to look at Brother Tubin or whatever you say, Pastor Tubin, and you say, oh, God can use this man like this much. इतना glory way में use कर सकता है. But this guy was like this. If God can use this man, God can use me also. Amen. This is what I want. इसीलिए परमेश्वर बोला कि आज शेयर करो अपना गवाही को बोलकर. और हम बता रहा था ज्वाइन करना है सैटरडे में. एंड अनदर अनाउंसमेंट इज दिस, टुमारो हमारा संडे सर्विस से 9 बजे स्टार्ट होगा. मिस नहीं करना है. आओ संडे सर्विस में ज्वाइन करो. ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में सब लोग ज्वाइन करो. गॉड इज गोना डू ग्रेट एंड माइटी प्रोफेटिकल वर्ड्स आएगा. आई वांट टू लास्ट से दिस थिंग. पास्टर जो भी मैसेजेस रिलीज कर रहा है ना, इट्स प्रोफेटिकल. ओके, इट्स लाइफ चेंजिंग मैसेजेस. लास्ट संडे में क्या मैसेज रिलीज किया था पास्टर? लुक एट अस. क्या रिलीज किया था आपको याद है? आई वॉज ट्रांसलेटिंग एंड आई टुक दैट मैसेज इन माई हार्ट. हम एक हफ्ता तक उसको ही सोच के बैठा, लुक एट मी, लुक एट मी. जहाँ पर भी जाएगा आई विल लुक एट पीपल लाइक, यू नो, आई हैव द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, लुक एट मी. जब उन लोग देखेगा, आई नो दैट गॉड विल टच देम. हम इतना, मतलब मेरा फेथ ऐसा था कि अगर हम उसको देखेगा ना, आई टू आई देखने से, गॉड विल टच देम. इफ आई गिव अ हैंडशेक टू पीपल, गॉड विल टच देम. एंड आई डिड लाइक दिस एंड आई सॉ मेनी ग्रेट टेस्टिमनीज हैपनिंग ड्यूरिंग दिस वीक. So why I'm sharing you this? Because pastor का messages prophetical है. हम खुद उससे सुन के हम meditate करता है. And listen, our messages also, because we are also from the same branch में हम लोग बह रहे, ठीक है. So हम लोग भी same Holy Spirit के द्वारा ही प्रचार कर रहा है. तो वो messages को आपको मैं encourage करना चाहता हूँ. pastor का जो shepherd of this church है, उसको आपको messages को सुनना है. Every messages. Last Friday का भी enlightening of the spiritual eyes, उसको भी मेरिट करो. जब आप करेगा ना, तब आपका जो darkness है वो भागेगा. Ephesians 4 में अभी भी पढ़ा है ना, dark and understanding बोल के पढ़ा है. वो चीज़ कब जाएगा? जब आप वो मैसेजेस को मेडिटेट करें, जब वो लाइट आपका लाइफ में शाइन करेगा. ठीक है. So this is what I want to share, and join us tomorrow on Sunday service. Last verse we'll read and then हम लोग प्रार्थना करेंगे. 2 Corinthians 4:6. With this last verse हम लोग end करेगा. Now let me tell you this. उसके बाद जब हम still we are going on, you know, जब हम यीशु मसीह को जान गया, उसके बाद I started coming here. हम यहाँ पे प्रचार भी कर रहा था, ट्रांसलेट भी कर दे रहा, इस प्रकार परमेश्वर के लिए कार्य करने लगा. बहुत सारा
ये सामने में बैप्टिस्ट चर्च है, उधर से बहुत परसिक्यूशन आया, ठीक है, बहुत परसिक्यूशन, बहुत सारे यहाँ पे खोंसा से भी है, होगा, आप लोग भी होगा, आपको परसिक्यूशन मिला। आई एम शेयरिंग यू दिस गाइस, दिस थिंग्स फॉर यू। परसिक्यूशन आया, बट गॉड ऑलवेज प्रूव्ड हिमसेल्फ, ठीक है, परमेश्वर हमेशा अपना आपको प्रूव किया। Still now, I don't know if I want to share this, but today I heard a very unfortunate message. जब हम लोग निकल रहा था ना, उसमें 2 आदमी आया था पास्टर का खिलाफ बोलने के लिए, नानी दी को झगड़ा करने आया था। I heard today one of that person died of cancer. So this is an unfortunate. इसलिए हम शोक हो गए थे, अरे कैसा ऐसा हो गया? But you know, you cannot speak against the Holy Spirit's work, ठीक है? And that's why it's very crucial. आपको भी stand करना है. I want to say, जो भी कौन सा का है, I'm telling you, if you stand for Jesus, Jesus will stand for you. Amen. अगर आप अभी खड़ा होगा ना, आप जज में आपका खिलाफ जो भी बोलो, doesn't matter. Holy Spirit will speak for them. Holy Spirit उन लोगों को देखेगा. You don't have to see. पवित्र आत्मा बोलते बातें करो. अगर नहीं बोलता है मेरा जैसे करना है, तो हम तो चुप, हम बात भी नहीं किए, छोड़ो उनके. हमको बुलाया, हम बात भी नहीं किए, हम चुपचाप स्माइल करके बैठा. I just didn't even talk to them because I know that God was calling me for something greater. हम इसमें चुपचाप पस के बैठने से हम क्या करके बैठेगा? मर जाएगा उधर में. I knew God wanted to do something through my life, and I was passionate. God का पीछे दौड़ना है, हमको उसका ही चीज, you know, उसने हमको खींचा है अपना तरफ. हम कैसे अभी उसमें जाके उसमें वो सब करते हैं. I was like, God, I want to go towards you. I started running towards you and never looked back. अभी जब पीछे देखता है, sometimes they look at us and गया. It's very unfortunate that जो दीदी था, we loved her so much. I loved her personally because हम उसका साथ इतना बेता नहीं, but really I loved her. When I heard that, I was like so grieved. Like I don't know what to say. May God like do something because वो पूरा healthy था, लेकिन the moment they started speaking to हम लोग का खिलाफ बोलने लगा, something has started happening, health issues आने लगा. हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकता है, समझ रहा है? ऐसा हालत हो गया था. हम लोग 1-2 बार हम तो गया उसके साथ, बात भी किया. He prayed for me, she prayed for me. लड़की है, she prayed for me also. She said, you know, God has anointed you to be like, now they can see the anointing upon me also now. तो ऐसा भी बोला, but still आज जब सुनाई दिया, I was like, oh my goodness, like क्यों ऐसा हुआ? Okay, समझ रहा है? But still, I just want to say that if you stand for Jesus, God will stand for you, alright? So just be bold and stand for Jesus. अभी का moment है, God is doing some revival. अपना जगह में revival करे, कुछ भी हो जाए खड़ा हो, discourage होने से भी वापस खड़ा हो, उसको dust off करो, वापस खड़ा हो. नहीं, यीशु के लिए करना है बोलकर preach करेगा, आराधना करेगा, जाके जो भी करेगा. Hallelujah. त्रिपुरा में Wilson, you gotta do right. In your Bangalore also, in your colleges, everybody. Colleges में कौन you will start doing in colleges, right? Start to do in colleges. Be fire for Jesus. Amen. Be fire for Jesus. God's anointing will fall upon you guys. I feel God's anointing will fall upon you guys. जो ऐसा decide करके करेगा बोल रहा है ना, God is saying God's anointing will fall upon you. जो decide करेगा, आज ये सेशन में बता रहा है, जो decide कर रहा है अपना दिल में. There are some people as they're listening right now, God is saying you're deciding that you will do something for Jesus. You will do something. God is saying that anointing will fall upon you because you have decided to stand for Jesus. That anointing will fall upon you. Kera sotaria malkaterama espa satakabaya ela marida hasevanaya zekatala bahaya skatalama. Thank you, Lord Jesus. Last verse. We'll read the last verse. You be in prayer because I know God is gonna do something. Last verse, 2 Corinthians 4:6. Last verse. उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे. God wants to anoint some people. 2 Corinthians 4:6. If you have the gift of tongues, start to pray in tongues. Setala mola shibra katelia lagazala manaza zetoramanda el faria sobra God is saying those who are deciding today at this service to stand for Him, God is saying I will anoint them. I will anoint them. Parakasela mandolaba. You won't know kya ho raha hai, but you will stand up for Jesus. When you will do it in your colleges, when you will stand up for Jesus, Bible, you know, God is saying He will stand up for you. The anointing of God आपका द्वारा बातें करने लगेगा. Anointing of God आपके द्वारा बहने लगेगा. साला रेतो शीला मांडेलियास. 2 Corinthians 4:6 को हम पढ़ देगा. And then we will pray together. Holy Spirit's power is in this place. Supernatural power of the Holy Spirit is in this place. Anointing of God is in this place. Oh yes, sakatelia malka sola manderi bahayas. 2 Corinthians 4:6 says like this: For God, who commanded the light to shine out of darkness, had shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Krishna, just read it in Hindi. Everybody be on prayer. सोरानानिया जिगाला काथोरा ज़ूम वाला भी प्रार्थना करो. परमेश्वर कुछ कार्य कर रहा है. सेथोरिया इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके.
और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे में प्रकाशमान हो। The Bible says to give us light and glory, and that glory is found in the face of Jesus Christ. यीशु मसीह का चेहरा में वो महिमा इस प्रकार से कह रहा है. Thank you, Lord Jesus. Everybody will stand up. Satora malkateria basi katara mandere baya. Vora sikataria malbala ko seteria mandara zila kamana jigala katalia. Yes, thank you, Lord Jesus. Savara katelia bara. Everybody just close your eyes. God is saying, for God who commanded the light to shine out of darkness, वो पिता परमेश्वर जब जेनेसिस में पढ़ते अंधकार था, अंधकार से ज्योति लाया. बाइबल कह रहा है वो ही पिता आज हमारा दिल में ज्योति दे रहा है. और वो ज्योति कोई दूसरा ज्योति नहीं है, कोई नॉर्मल लाइट नहीं है. वो जो ज्योति दे रहा है, वो प्रकाशन जो दे रहा है, वो दुनिया का रोशनी नहीं है. जो रोशनी दे रहा है वो यीशु मसीह, द नॉलेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर का महिमा का नॉलेज है कह रहा है. परमेश्वर का नॉलेज का महिमा है कह रहा है. और बाइबल कह रहा है वो यीशु मसीह का चेहरा में दिखाई देता है. In the face of Jesus Christ. Jesus, परमेश्वर आज आपको जीसस का अभिषेक दे रहा है. अभिषेक. ओ शतला बाबा ज़ेनाथोरा माकातिलियास सोला खबर. There is somebody Zoom को भी छू रहा है. Zoom वाला इंसान परमेश्वर छू रहा है आप सभी को. अभिषेक इस जगह पे है. ओ सेकारा मांडोरो सेतेरिया लातोरा जेके तेरा माल के लियास. तेरा प्रेम तेरे समान. Begin to just love on Jesus. Love on. प्रार्थना करने लगो कोई. ओ रासेतेरिया मोरा सिला मंडलबा बदलता नहीं सोरा मंड. Thank you, Lord Jesus. Oh, फरकतेलिया मासीतारामा. प्रभु कह रहा है वो अभिषेक कर रहा है कोई को. जो डिसाइड कर रहा है प्रभु के लिए खड़ा होने के लिए, प्रभु अभिषेक कर रहा है. पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पर उतर रहा है अभी. पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा है उन पर अभी. जूम वाला पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा है आपके ऊपर में. ऑनलाइन का जो देख रहे पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा है. खारा बहा राथालिया वाला सोब्राना ज़ेतेरिया लगाथरिया ज़ेदेना माना चिगा लगाथलिया. और राबा जो यहाँ पे अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है, ग्रहण करो. शतला माला लेथोरिया वाला सेतरिया एलमरा सेतरिया माना चिगा लगाता एम्ब्रा कथलिया ओरा सेला मनारिया केरा मथोरा माज़ेना मनाया सकथलिया बरकबा. Oh, the power to witness for Jesus. Power to witness for Jesus. Oh, बदलता नहीं हो प्रभु तेरा प्यार तेरे समान रहता सदा. ओ एक समान. हर हाल ओ लॉर्ड वो कभी बदलता नहीं. विश्वास योग्य परमेश्वर प्रभु तेरा प्यार है तेरे समान रहता सदा. ओ एक समान. हर हाल ओ यीशु का प्रेम एक समान. ओ यीशु का प्रेम एक समान. कोरा मारिया सेतेरिया ना जिगला कथेरिया ओरा बस शतरिया वाला कथा सेतेरिया मासोंबा बाबा एल पारा कथेरिया मलबाहाया जेके तेरा मल बोलहाया एब्रा कथा लका वाला कथेरिया रकथेरिया रबो शबाला बा. घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ओ ख्वाहिश मेरी. Yes Lord. Oh, घुटनों से ऊंचा. I wanna be कमर से inside of भी you. ज्यादा ओ तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी. कोरा मा से तेरा माला बाला जिगला तो तेरा बस से तेरा माल बारा कथेरिया कोरा मांडरे के बाला की जला मारा कथेरिया रेथेरिया बाला का बास से तेरिया लेथेरिया. पवित्र आत्मा का अभिषेक इस जगह पे है अभी. ज़ेतेरिया माला का दबारा हस. ग्रहण करो ग्रहण करो ग्रहण करो. पवित्र आत्मा का अभिषेक बह रहा है बह रहा है. ग्रहण करो ग्रहण करो ग्रहण करो ग्रहण करो. ओ रासा का तारा मालवा लेको थोरो बोश. घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबो यही है ख्वाहिश मेरी. घुटनों
से Oh, Yeshua. कमर The light of Jesus Christ shine in our hearts. में यीशु का रोशनी ज्योति हमारे हर एक अंधकार को भगा रहा है आज. Oh, light of the gospel. तेरा सोथोरिया मना जिगला कथा. Acts 1:8 में बाइबल कहता है, the Holy Spirit will come upon you and you shall receive power. You shall receive power. You shall receive power. आग से सामर्थ मिलेगा. भर मुझे अपनी शक्ति से भर O मुझे karama setere bo shikalaba leto rama rebo shita rama sendo raba raba rede rebe shikalaba kora mande reke shila manda era katali mala soto robo era mando robo shikaraba era baba seterida ora mande reke bera. अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगो सभी लोग. अन्य भाषा में प्रार्थना करो. सेtere bo shikarama era mande reke bora shikaraba ora mande rebe ora ba shikara baba ora da lege de gada sotoro bo shikara raba rede ora mande rebe eze ba raba setere ba raba era mando robo bo setere rebe ria ere kete rebo shatala manda kara baba rebe shatara baba era munda reba sotoro bo shakatala bala bahaya era morobo shetere mama era munda bala sheketeria era bobo shikara baba. अपने वचन आज आपको क्या चाहिए परमेश्वर से? God is giving you everything that you need from Jesus. Ask for him. अपने आग आपको जो चाहिए मांगो. अगर छुटकारा चाहिए छुटकारा मांगो. अभिषेक चाहिए अभिषेक मांगो. अभिषेक चाहिए मांगो अभिषेक. भर मुझे तेरे काम कोरामा का तेरा बोबो शीतला मंदिर. अगर आपको वचन चाहिए वचन को मांगो. मुझे बाइबल का वचन सिखाओ. से भर मुझे अपने वचनों से भर मुझे तेरे काम के लिए अपने आग से भर मुझे अपने सामर्थ से भर मुझे हीरा मसोथोरा मंडले बाहा एला बोबो शिकाला बाबा एला मंडा रेकेतेलिया लोटोराबा एला बोरा सेटेरिया भर ओरा बाला माला सेटेरिया मा एरा मंडो रोबो बोबो शिकाला बा वचनों से Zeketela Saba brother Saba come here take one mic ले लो. Sakataria bala kataraba ela mora baba seketeria malba legeria ba. Just be here. वचनों से God is telling me to pray for this people. Satara monda raba leketeria elba lata tidio sataria malba lahaya era mundu raba seketeria raba siteria erba rokotoria malba seteria ela monda raba babo shikaraba karaba baligara bahaya sopro kabalias. पवित्र आत्मा छुएगा भी. पवित्र आत्मा टच करेगा भी. अपनी शक्ति से सेटेरिया मलबला का देला मुंडा रबाला का सेटेरिया रको थारा मंडे एल बारका बाली के सेला मुंडा रबाला हालिया एल बारका देलिया रकता मोशी बाला का एल मुंडा रबाला हासे अपनी शक्ति से भर मुझे एरा मुंडो रबा सेटेरिया रकतेलिया ओरा मंडे रेबो शिबाला बा जिगा लबा लबा रेके तेरिया रगदा ओरा मंडे रेबो शिकारा बाला बा एरा बो शिकारा बालिया भर मुझे अपने वचनों से भर मुझे तेरे काम के लिए अपने आग से भर मुझे अपने शक्ति से भर मुझे अपने वचनों से भर मुझे तेरे काम के लिए अपने आग से भर मुझे अपने शक्ति से भर मुझे अपने वचनों से भर मुझे तेरे काम के लिए. मेरे साथ गाए अपने आग से भर मुझे अपने शक्ति से भर मुझे अपने वचनों से भर मुझे तेरे काम के लिए अपने आग से ओ अपने शक्ति से भर मुझे अपने वचनों से भर मुझे तेरे काम के लिए. Thank you Lord Jesus. प्रभु सतारिया कथलिया बास से कथारेमा प्रभु का अभिषेक इस जगह पर है. पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई दे रहा है आप लोग के लिए प्रार्थना करने के लिए.
जिसको प्रार्थना चाहिए, जिसको अभिषेक चाहिए, अगर प्रभु को कुछ महसूस करना चाहिए, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। शाखा तेरे मालबा एला बोरा, प्रार्थना के साथ आगे आओ, विश्वास करते हुए आओ। यस वी गो, गिव अ प्रे ब्रदर। ओ सातारी माला कथा, पवित्र आत्मा से भर रहा है। यस केरा मोंडरा का अन्य भाषा से भर रहा है आपको। कारा बकते रे बोश एरे मंदरा का भले के बेरिया सातारी माला का भरा जगले केरिया रगदा भले के बेरे ओरा मारा तेरे माना सेदरिया रोतरिया भले का भलिया रगदा भले चले भला एला मंदरो। जो आगे में है, जो आगे में पवित्र आत्मा छुएगा, पवित्र आत्मा छुएगा। अभिषेक इस जगह पे है। ओरा माला कातेला मोलबो शेतलिया बलबा एला मंदरा भला का बनमा शेतरिया एला मोथरा बलबा एला मोथरा भला शेतरिया बा साथारे के देवो शबलबा। Oh Jesus, oh Lord Jesus, Lord, touch this brother, Lord, anoint him, Jesus, anoint with fire, Jesus, anoint this brother, anoint this brother. अभिषेक कीजिए Lord, यीशु अभिषेक कीजिए Lord, इस प्रार्थना कीजिए जो Zoom पे जो YouTube Holy Spirit is gonna touch her. पवित्र आत्मा छुएगा। ओरा बा चुरा है Sister, yes, केरा बाबा, God touch in the name of Jesus. केरा बोरा भाषितरा बाबा, अभिषेक in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, anoint her, Lord, prophetically, Lord, prophetical anointing upon our lives in the name of Jesus. Anoint them, Lord Jesus, Lord, all of them. मुझे अपने शक्ति से भर, मुझे अपने वचनों से भर, मुझे तेरे काम के लिए अपने आग से भर, मुझे अपने शक्ति से भर, मुझे अपने वचनों से Touch. मुझे तेरे पवित्र आत्मा छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, ओ छू लीजिए। पवित्र आत्मा छू रहा है सिस्टर आपको छू रहा है, वो आपको प्रेम करता है। ओरा सेतरम अजीज मारियो सोरा बस touch them in the name of Jesus, touch in the mighty name of Jesus, touch in the mighty name of Jesus, touch in the mighty name of Jesus. Oh satara bala bala ba sekedene, fire upon this guy, fire on this, deliver in the name of Jesus, brother. God is coming upon you right now, power. Sapar ketelia letora masevenas ebrakatelia malkatorbo zekena zikala bahaya jegede ligada halakaba sataria malbalakada. Lord, power, touch, power. Seteria mo parakatelia elkatora malba seteria lagada silamandara elamora basekeria. With no doubt, you have anointing upon your life. अपने आग से भर, मुझे अपने शक्ति से भर, मुझे तेरे वचनों से भर, मुझे तेरे काम के लिए अपने आग से भर, मुझे अपनी शक्ति से भर, मुझे तेरे वचनों से भर, मुझे तेरे काम के लिए से ऊंचा कमर से भी ज़्यादा Thank you, Lord. Thank you, Lord. से ऊंचा कमर से भी ज़्यादा तुझ में डूबो ये ख्वाहिश मेरी। Those people who are in Zoom right now, the people in Facebook right now, in YouTube, pray to God right now, pray to God. God continue today, Lord. God continue today, Lord, yes. Zakataria masotora baba, Zekatania mas. Kotaraba seteria, Mortari gadaba sekenia sekadaba, Ela kabaria, Zeteria dagaraba, Sataragada, Sekedinia. Anok brother, look at me. God is touching you right now. The power, God, Lord, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Satarava lakatarias, Secretary, your worship will change. Your worship level will change, brother. Sabala katelia malkateria ma zotaraba. Oraba sakatara mama sikaria. सदा एक समान हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा
एक समान हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। अभी प्रभु कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, जो प्रभु का प्रेम को अनुभव करना चाहता है, हाथों को उठाओ। प्रभु का प्रेम को अनुभव करना चाहता है, प्रभु का प्रेम इस जगह पे है। Just raise your hand right now. Yes. प्रभु का प्रेम आपको छुएगा। यीशु का प्रेम आपको छुएगा, Lord. Yes. Thank you, Lord. वो गहरा प्रेम, Yes. वो गहरा प्रेम, The deeper love. माँ से भी गहरा। Yes. More than your mother. ओ Oh, Yeshua. इतना गहरा प्रेम। Yes. Yes. The deeper पूरा love. माथारिया रे आराधना। Oh, there is some of you. God is saying, everyone. I don't need any volunteer in this place right now. Nobody's gonna touch anybody now. Even volunteers, just raise up your hands. Every volunteer, Job, yes. Everyone, 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 yes. जो YouTube में, Facebook में, Everyone. अपने हाथ को उठाओ इसे वो. माँ से गहरा है प्यार तेरा। प्रभु कह रहा है वो हम नहीं छूने से भी प्रभु कुछ कर रहा है अभी। प्रभु पवित्र आत्मा किसी किसी को भर रहा है प्रेम से। Lord, yes. वो गहरा प्रेम, Yes, Lord. वो प्रेम जिस प्रकार से आपको प्रेम किया यीशु ने उसको दिखा रहा है। आपका आंसू आएगा, कोई कोई रोएगा, नहीं रुका पाएगा आप रोना को, आप रोएगा, आंसू बहेगा आपका आंखों से। वो आंसू प्रेम का है। आपने यीशु का प्रेम को देखा है बोल के रो रहा होगा। ओह जीसस, Right now. वो गहरे प्यार से ओ जीसस प्यार किया, गहरे प्यार से ओ जीसस। तूने प्यार यस जीसस, ओ से जीसस, तेरा ओ साताला मामा मोसिकेटेरिया। गहरा है प्यार तेरा। God is saying हम सब किसी किसी का मिनिस्ट्री लेवल बदलेगा कह रहा है। I don't know कौन है यहाँ पे। प्रभु कह रहा है किसी किसी का मिनिस्ट्री लेवल बदलेगा। अगर आप वो इंसान ग्रहण करो विश्वास के द्वारा, मिनिस्ट्री लेवल बदल जाएगा कह रहा है प्रभु। खराबा सेथरिया मालका थराबा, जिस प्रकार से मिनिस्ट्री करता था प्रभु का अभिषेक आने लगेगा कह रहा है। अब आराधना करता था, आराधना में अभिषेक आने लगेगा। वचन प्रचार करता था, वचन में अभिषेक आने लगेगा कह रहा है प्रभु। तेरा यीशु का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं। Receive the love, 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 Jesus. आपके दिलों में प्रभु का प्रेम। सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया मुझसे, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, मेरा यीशु का प्यार। माँ से गहरा है प्यार तेरा। Somebody sing गहरे प्यार से, गहरे प्यार से। आवाज उठाकर तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा। Somebody sing माँ से गहरा, माँ से गहरा। Come on, और एक बार मेरे साथ गाओ, गहरे प्यार से, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। Somebody sing माँ से गहरा। Come on, don't waste your time. Come on, sing everybody, everybody confess. माँ से भी गहरा वो प्यार, वो कभी नहीं मिटने वाला प्यार है, कभी खत्म नहीं होने वाला प्यार है। ऐसा प्यार,
both of you. God says your ministry level will change. Ministry level बदल जाएगा. God says your ministry level will start. माँ से गहरा है प्यार तेरा मेरा बादशाह ला 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 मेरे माँ से गहरा तेरा प्यार मेरा यीशु का प्यार माँ से भी गहरा है मेरा यीशु का प्यार माँ से भी ज्यादा है ओ माँ से गहरा है प्यार तेरा. Church, come on, somebody sing with me. Oh, माँ से गहरा है प्यार तेरा माँ से गहरा है प्यार तेरा माँ से गहरा है तेरा प्यार. ओ माँ से गहरा है प्यार. Thank you, Lord Jesus. Sakatela makateria sopakatela mahas embrakateli kabasela mohonda faria zabrakatelias ezakatela mora bahasi prakatela moseterianas. Thank you, Lord Jesus. अभिषेक बदलेगा कह रहा है. अभिषेक मिनिस्ट्री लेवल को बदल देगा कह रहा है. मेरा लिए भी बहुत सारा यहाँ पे मिनिस्टर्स लोग है. प्रभु कह रहा है आपका मिनिस्ट्री का लेवल बदल जाएगा कह रहा है. यीशु का नाम में आप जो भी परमेश्वर के लिए कर रहा है कुछ भी लेवल में कर रहा हो सकता है. जो भी कर रहा है वो बदल जाएगा कह रहा है. आपका मिनिस्ट्री करने का दंग अभिषेक आने लगेगा भरपूरी से. Sopa rakatela malbalas. Lord, we receive that. Lord, we receive your word, Jesus. Lord, change, Lord. Increase our anointing in our ministry, Lord Jesus. We want to see more of your glorious anointing, Jesus. We want to see more of your glorious anointing, Jesus. ऐसा अभिषेक प्रभु दे तुमको तेरा चेहरा को बस देखे प्रभु. तेरा चेहरा को ताकते हुए महिमा से भरा हुआ चेहरा को ताकते हुए तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ नाम को ऊपर उठाते हुए प्रभु ऐसा अभिषेक प्रभु. ऐसा अभिषेक हर दर चला जाए प्रभु. इतना अभिषेक से भर प्रभु जब खड़ा होगा प्रभु तेरा अभिषेक इतना भयंकर से आप प्रभु. लॉर्ड आपका हम लोग जब आपके लिए खड़ा होगा लॉर्ड हम लोग तो यहाँ कलीसिया में मिलता है लेकिन when we will go outside वो अभिषेक आना है. God says वो अभिषेक भरपूरी से आएगा. बाहर जाते समय में भी हम लोग जब खड़ा होगा वो मिनिस्ट्री का लेवल बदल जाएगा कह रहा है प्रभु. पूरी तरीका से बदल जाएगा. परमेश्वर नया लेवल लेकर आ रहा है. कोरा मंधे रखा सेलिया रखा दबाले के वेनस. पवित्र आत्मा कह रहा नया लेवल आ रहा है. नया लेवल. ओ हालेलुया. हम जब कल यहाँ शाम में आया था पास्टर प्रचार कर रहा था. पास्टर ने उधर से मेरा ऊपर में हवा की ऐसा बस बोला ग्रहण करो. कुछ सामर्थ मेरे ऊपर में आया. पवित्र आत्मा बातें करने लगा नया लेवल आ रहा है बोलकर. मुझे पता है वो नया लेवल आ रहा है. ओ हालेलुया नया लेवल आ रहा है. अधिकार सामर्थ दोनों दिखाई देगा कह रहा है प्रभु. इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड. प्रभु तेरा नाम को सर्वश्रेष्ठ नाम को ऊपर उठाते प्रभु. यीशुआ ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी. इतना डूब जाना है हमें यीशु मसीह में कि हम और यीशु मसीह में कोई अंतर ना हो. इतना डूब जाना है यीशु मसीह और हम एक बन जाए. जब बाहर जाएगा यीशु मसीह जा रहा है जैसे होना है. जब कलीसिया आता है यीशु मसीह से भरपूर होना. इस प्रकार से भर प्रभु हमें लो. तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश. यही मेरी ख्वाहिश है प्रभु. Somebody sing this song. ऊंचा कमर से भी ज्यादा. Last song and we will be ending. डूबूं यही ख्वाहिश में. और कुछ नहीं चाहिए yes, कुछ नहीं चाहिए. बस एक चीज चाहिए प्रभु. पवित्र आत्मा का उंडेल प्रभु. पवित्र आत्मा को इतना उंडेल तेरे में lost. I want to be lost in you Jesus. ख्वाहिश वो अभिषेक भेज प्रभु. इतना अभिषेक भेज प्रभु. तेरा अभिषेक में मगन हो जाए. किसी इंसान से ना डरे. बस तेरा अभिषेक को देखे. तेरा चेहरा 2 Corinthians 4:6 seeing the glory of God in the face of Jesus Christ.
यीशु का चेहरा को ताकते हुए, वो उपस्थिति, वो सामर्थ को देखते हुए ऐसा अभिषेक कर प्रभु। तुझ में Oh Lord. डूबूं यही हे ख्वाहिश मेरी हर वक्त मैं कहता हूँ घुटनों से ऊंचा, यही चाहिए प्रभु, बस ज्यादा बस तुझ में। जूम वाला इंसान को ग्रहण करो, पवित्र आत्मा छू रहा है। सोरा अमर खातेलिया लदोश से तेरा मांडरा बालहास प्रभाकर लामा, परमेश्वर आपका दिल को छू रहा है। ओ शाताबा, इतना आप रो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा क्यों रो रहा है। प्रभु का प्रेम छू रहा है आपको। हे रामो थोराबा नवाम पितु पर में God's anointing is coming upon your life. Receive that anointing. खाराबा काथेला मैं तोरा सेदा मनाया क्योदा यकीन परमेश्वर का अभिषेक आ रहा है, छू रहा है आपको। आगा फेरा थोरो शेतलिया माल्टारी गदा हमारा कसिस Setaramonda rabalia sabalia. God's anointing is pouring upon your fresh anointing like oil is pouring upon your life right at this very moment. Eramo seterimana somba baba jigala bahala kaba seteriala. तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। उकुदी और मलोदी, सिंह का मलोदी, जस्ट अपने हाथों को उठाओ, आप दोनों के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा छुएगा। कुछ चीज से गुजर रहा है आप लोग, परिवार में भी कठिनाई आ रहा है, परमेश्वर कह रहा है मैं देख रहा हूं तू मेरा बेटी है, कठिनाई होने से भी मैं तेरे संग संग चलता हूं, प्रभु कह रहा है। यस, प्रॉब्लम को देख रहा है आप लोग, लेकिन परमेश्वर कह रहा है प्रॉब्लम को आज मत देखो, मुझको देखो। यस साबाराथोरिया सेला मंदिर बेली शिकारा बालाबा जिगला कथेरिया मोसेथेरिया मंदरा। यस उकुदी, God is touching your life in the name of Jesus. God is touching you. उकुदी, परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है यीशु का नाम में। In the name of Jesus. Everybody, Zoom का जो भी है देख रहा है, receive the anointing, receive the God's anointing upon your life. Everyone. Kanya sister, receive the anointing upon your life. Karaba katelaba zela monda rabasi katarababa. कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश में। बस एक ख्वाहिश है, only one thing. Jesus, pour out your Holy Spirit in my life. I want to be drowned in your Holy Spirit. इतना गहरा से, Ezekiel 47:5 से था, इतना भयंकर से पवित्र आत्मा का नदी बह गया कि मैं तैरना पड़ा मुझे। ऐसा हालात मेरा आत्मिक जीवन में बना प्रभु, बोल के प्रार्थना कर। खोरा बला केसरिया, ये सर्विस खत्म हो जाने से भी आपको अपना पर्सनल रूम में आपको प्रार्थना करने, लॉर्ड इतना मुझे तेरा प्रेम गहरा से प्रेम कर प्रभु, तेरा अभिषेक का नदी में मैं तैरना चाहता हूँ। जब आप ऐसा डिसाइड करके बाहर निकलेगा ना, आप जब मिनिस्ट्री भी करेगा ना, इंसान लोग अभिषेक छुएगा, आपको कुछ ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। सतारिया सबलबा। पिता परमेश्वर, तेरे उपस्थिति में फिर से आते हैं प्रभु। तूने आज हमें आशीष किया, तेरा उपस्थिति, तेरा सामर्थ्य से लॉर्ड जीसस, तुझे धन्य कहते हैं प्रभु। तू धन्य है Lord. You are the God of Abraham, Isaac, Jacob. You are the God who changed my life. You are the God who changed all our believers, all our young people's life. Lord, तूने बदला है प्रभु, सबका जीवन में तूने करा बड़ा कार्य किया। ओ हम धन्यवाद देते हैं तुझे यीशुआ। तू जीवित खुदा है, तेरे जैसा कोई नहीं है। हम लोग यहाँ पे आराधना करते एक जीवित परमेश्वर का, हम स्तुति करते तेरा प्रभु यीशु, तू जीवित है बोलकर। तू मेरा जीवन में जैसे कार्य किया, ये कुछ नहीं है प्रभु, इतना सारा इंसानों के जीवन में तूने कार्य किया। ओ धन्यवाद देते प्रभु तुझे। You're the God of Abraham, Isaac and Jacob. You're the God of Elijah, Moses. You're the God who is mighty upon the throne. तू परमेश्वर जो आज़ादी देता है, वो परमेश्वर जो हमारा दिल में प्रेम से भरता है, अभिषेक देता है प्रभु। तू हमें, तुझे धन्यवाद देते हैं। आज जिसको भी छुआ है प्रभु, उनको आप और गहरा से छुओ प्रभु, उनका दिलों को और गहरा से छुओ, आपका प्रेम को और ज़्यादा गहरा से जाने दो, सामर्थ्य और ज़्यादा छुओ प्रभु। ये सब प्रार्थना, ये सर्विस को आपके हाथों पर देते हैं। सबका दिल दिमाग को अपने हाथों पर ले लीजिए। Lord, I surrender myself also, Lord. Thank you for blessing us together in this moment. We love you, we honor you, we bless you, Jesus, King of Kings, the Lord of Lords. We bless you in the most precious name, in the most powerful name of Jesus. Together we all pray, and everybody say the Amen. Somebody say Amen. Somebody say thank you, Jesus. Say I love you, Jesus.
सो हम प्रेज द लॉर्ड, सबको वापस आशीष करता है। आई होप यू हैव बीन ब्लेस्ड। हम लोग का यहाँ पे भी फिजिकल चर्च में भी है, हम आप लोग सब लोग आशीष पाएगा, हम विश्वास करता है। आज हम लोग थोड़ा लेट हो गया, बट ये पहला सर्विस था। हम विश्वास करते हैं नेक्स्ट सर्विस से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट सर्विस से हम लोग मैक्सिमम आज थोड़ा आराधना भी ज़्यादा चला गया था। आराधना 8 बजे से लेके 9 बजे तक कर दिया। हमारा लियम ब्रदर ने पूरा अभिषेक में आके वही 9 बजे तक ले गया। हमको बस 30 मिनट्स मिला था, सो इसलिए हम ज़्यादा अच्छा से उसमें भी नहीं कर पाए। बट नेक्स्ट टाइम में 30 मिनट्स वर्शिप होगा, फिर मे बी 45 मिनट्स वर्थ, ऐसा करके हम लोग 9:30 तक ख़त्म कर देगा। आज थोड़ा सा लेट हो गया है। ऑनलाइन में भी जो भी देख रहा है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। सैटरडे में आप ज्वाइन करो, अपना दोस्तों को इनवाइट करो। ये जूम में भी हम लोग का होता है, जूम में भी आप ज्वाइन कर सकता है। यूथ को लेकर अपने दोस्तों को लेकर आओ। फेसबुक यूट्यूब में भी देख सकता है। परमेश्वर आपको आपका ज़रूरतमंद के अनुसार बातें करेगा ये सर्विसों में। गॉड रियली हैज़ ब्लेस्ड आवर यूथ्स एंड परमेश्वर अभिषेक किया है, उन्होंने खड़ा होकर उन्होंने प्रचार करेगा। सो हम आपको सबको आशीष करता है। कल सुबह 9 बजे मिलेगा। जो फिजिकल चर्च आ सकते हैं आओ, परमेश्वर बड़ा बड़ा कार्य करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, वी लव यू, जीसस लव्स यू। गो, थैंक यू लॉर्ड जीसस।